Hello friends, this is Pooja. Welcome to my channel Learning Hub. I teach you English grammar from basics to advanced. So today we are going to learn a very new chapter, narration, which is a very interesting topic. So now let us move ahead and begin. So today we are going to learn a very new chapter, a very new topic called narration. Narration is the use of a written or spoken commentary to convey a story to an audience. Narration is a use of a written or spoken, किसी की लिखी हुई या कही हुई बात को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने को narration कहते हैं. If two people are speaking among themselves and we are representing that to a third person in a narrating way, that is called as narration. किसी को समझाना कुछ हो या कुछ बताना हो किसी के बारे में या कोई टॉपिक डिस्कस करना हो तो नरेट करके हम करते हैं. That is called as narration. We will understand it in a better way with many examples and some definitions. So now let us move ahead and see them. To say a word or a sentence or narrate anything directly as it is, we use direct speech, or it is also called as reporting speech. Direct speech repeats the exact words spoken by the speaker. अगर किसी ने कुछ कहा है तो हम उसकी वर्ड्स को एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं बिना किसी चेंजेस के. वी डोंट ऐड एनीथिंग, वी डोंट रिमूव एनीथिंग. एंड द स्पोकन वर्ड्स आर ऑल्सो प्लेस्ड बिटवीन कोटेशन मार्क्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उनको डाल के हम बोलते हैं. एंड वी डोंट ऐड एनीथिंग, वी डोंट रिमूव एनीथिंग. दिस इज़ डायरेक्ट स्पीच. On the other hand, if we look at indirect speech, that is also called as reported speech. It is usually used to talk about the past. Past के बारे में ही बातें होती हैं, but the tense of the spoken word changes. Whatever it was said, we are saying in the present, and we change the tense of the sentence because it happened in the past, and from past we move to present, then the tense will, it is obvious that it will change. This is called indirect speech or reported speech. Hope the definitions are clear. To be more clearer, we must see some examples. So let us see some examples. If we will go through the examples, we will somehow be clear that what is the major difference. He said, in the example we can see that he said I am playing. In the picture we can see that the boy is playing and the person is directly saying that he is playing. And in the second line we can see that he said that he was playing. We are representing the words said by the speaker. The boy said he is playing. खुद से उसने कहा तो I am playing. और जब हमने उसकी बात को कहा तो वहाँ पे हमने said के बाद that ऐड किया and inverted commas are removed and I am की जगह पे he replace हुआ. So hope it is clear to all. डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं. He said I did this exercise last night. This is in a direct way. And in the indirect sentence it may be said that he said that he had done that exercise the previous night. यहाँ पे that add हो गया, inverted commas are removed and the last night is changed to previous night. So these are the changes when we change from direct to indirect sentences. Now here we will have some words which are very important when we change from direct to indirect. Let us have look at them. जैसे will changes to would, here changes to there, this changes to that, these changes to those, and today changes to that day. These are the important words, some important words which we must keep in mind while changing the sentences, while changing from direct to indirect. Some other words are also there. Let us have look. Last night changes to previous night, yesterday changes to previous day, tomorrow the next day, last week the previous week, last month the previous month, and next month a month after. Hope these words are memorable. If you don't memorize, keep a screenshot. So now let us see some changes in the tenses
जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो टेंसेस जो होते हैं वो बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। इसको थोड़ा सेंटेंसेस के थ्रू हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ही सेड आई वॉन्ट टू गो नाउ। ही सेड आई वॉन्ट टू गो नाउ इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पास्ट इंडेफिनिट है ही सेड दैट ही वॉन्टेड टू गो देन। यहाँ पे सेड के बाद डैट ऐड हुआ और आई के जगह ही ऐड हुआ। वांट जो है पास्ट फॉर्म में वांटेड में चला गया और नाउ है जो देन में बदल गया। जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है कि नाउ चेंजेस टू देन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। तो आप यहाँ पे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मोना सेड आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। मोना ने कहा कि वो डिफरेंट टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखती है। मोना सेड दैट शी रोट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदल चुका है। अगर बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस व्हेन वी मूव फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते ही प्रेजेंट जो है वो पास्ट में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। मीनू सेड आई एम ट्रैवलिंग टुडे। मीनू सेड दैट शी वॉज गोइंग दैट डे। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम देख रहे हैं मीनू प्रेजेंट की बातें कर रही हैं, लेकिन अगर वही बात को किसी और के सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डैट ऐड हो गया, आई की जगह शी हो गया, एम की जगह वॉज हो गया एंड वॉज गोइंग डैट डे। टुडे जो है वो डैट डे में चेंज हो गया। आगे देखते हैं कुछ और टेंसेस। Our next type of tense is present perfect continuous. Present perfect continuous changes to past perfect continuous. जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। माई मॉम सेड आई हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। मेरी मम्मी ने कहा वह सुबह से खाना बना रही हैं। माई मॉम सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। मम्मी ने कहा वह सुबह से खाना बना रही थी। प्रेजेंट जो है पास्ट में बदल गया है। सेड के बाद डैट ऐड हो गया, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड और हैव बीन जो है वो हैड बीन में चेंज हो चुका है। आगे देखते हैं। अगला जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। क्या है एग्जांपल्स। माई सिस्टर सेड आई वेंट टू मार्केट। मेरी बहन ने कहा वो मार्केट गई थी। नेक्स्ट जो इसका जो ट्रांसफॉर्म सेंटेंस है वो है माई सिस्टर सेड दैट शी हैड गॉन टू मार्केट। ये बदल चुका है कम्प्लीटली और सेड के बाद डैट ऐड हो गया है, वेंट की जगह शी हैड गॉन लग गया है और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड हो गए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले टेंस की तरफ। अगला जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है जब वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ही सेड आई वॉज कुकिंग व्हेन शी अराइव्ड। उसने कहा वो खाना बना रहा था जब वो आई थी। इसका जो चेंज्ड फॉर्म है मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म है वो है ही सेड दैट ही हैड बीन कुकिंग व्हेन शी अराइव्ड। उसने कहा जब वो आई थी खाना बना रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ, सेड के बाद डैट ऐड हो गया, आई की जगह पे ही आ गया, हैड बीन वॉज की जगह पे आ गया और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो रिमूव्ड हो गए। तो होप आप समझ पाए होंगे कि दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। Our next kind of tense is past perfect tense. पास्ट परफेक्ट जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। देयर इज़ नो सच चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। पास्ट परफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, द टेंस डज नॉट चेंज। लेट अस सी एग्जांपल्स। मीरा सेड आई हैड डन माई वर्क। मीरा ने कहा उसने उसका काम कर लिया था। मीरा सेड डैट शी हैड डन हर वर्क। मीरा ने कहा उसने उसका काम कर लिया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है, ओनली सेड के बाद डैट ऐड हुआ है जो कि रूल है एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड और आई के जगह पे शी का यूज़ हुआ है।
इसके अलावा कोई भी चेंजेस हम नहीं देख पा रहे हैं टेंसेस में। तो होप इट इज़ क्लियर दैट पास्ट परफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ वी विल मूव अहेड एंड सी सम एग्जाम्पल्स एंड सम। द टीचर सेड द सन राइजेज इन ईस्ट। टीचर ने कहा कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है। नीचे का जो सेंटेंस है उसमें भी ऐसा ही है, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। Here we can see that there is no any change brought. The reason behind this is the universal truth. जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सन है वो हमेशा पूरब दिशा में ही उगता है, ये सबको पता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो जब भी बात यूनिवर्सल ट्रूथ की आती है तो हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, माय फादर सेड वाटर इज़ लाइफ। मेरे पिताजी ने कहा जल जीवन है। My father said that water is life. Only that is added and inverted commas are removed because this is also universal truth. ये constant है, इसमें हम कोई भी change नहीं कर सकते हैं। So hope it is clear to all. Now let us move ahead. Now we will see some exclamation words which are used in exclamatory sentences और इनका यूज़ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे यूज़ होता है वो हम फर्दर सेंटेंसेस के थ्रू देखेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय हुर्रा, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो अलास आ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज व्हाट वाओ, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज ब्रावो वेल डन। ये सब जो वर्ड्स है वो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं जो अलग अलग फीलिंग्स को दिखाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि सेंटेंसेस में जब हम इनका यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने पे कैसे हम सेंटेंसेस को लिखते हैं उसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, राम सेड हुर्रा वी वोन द गेम। राम ने कहा हुर्रा हम गेम जीत गए। इसी को अगर इनडायरेक्ट वे में कहना है तो हम कहेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट दे वोन द गेम, क्योंकि हम राम की कही हुई बात किसी और के सामने कह रहे हैं। तो यहाँ पे हुर्रा वर्ड जो है बिकॉज वो हैप्पीनेस दिखाता है तो यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। एंड बाकी जो चेंजेस है, जो रूल्स है, वो तो इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव्ड हो गए। वी के जगह पे दे का यूज़ किया हम लोगों ने और सेड के बाद डैट लगाया। अनदर एग्जाम्पल इज़ हेयर, ही सेड व्हाट एन अमेजिंग पिक्चर इट इज़। बड़ा ही एस्टोनिश्ड होकर उसने कहा कि क्या अमेजिंग पिक्चर है। तो यहाँ पे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक सरप्राइज के साथ उसने कहा डैट इट वाज एन अमेजिंग पिक्चर, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर है ये। यहाँ पे भी सेंटेंसेस में सेम चेंजेस हुआ है, इन्वर्टेड कॉमर्स आर रिमूव्ड एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज इज एडेड। नीतू सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई रिंग। ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही। नीतू ने बड़े दुख से कहा कि अलास मेरी अंगूठी खो गई है। नीतू ने एक्सक्लेम किया, अपना दुख, अपना सॉरो बताया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीतू एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर रिंग। उसकी अंगूठी खो गई है तो शी इज सैड, तो उसने एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर रिंग। सो नाउ वी विल सी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मूव करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स है और कैसे करते हैं सेंटेंस क्रिएट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोज, ऑर्डर, फॉरबिड, वार्न। ये सब जो वर्ड्स है वो सेंटेंस क्रिएट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शिफ्ट होते हैं। इसको एग्जांपल्स में देख के हम अच्छे से समझेंगे। द लॉस्ट गर्ल सेड टू द पुलिस प्लीज़ हेल्प मी। जो लड़की थी, खो गई थी, उसने पुलिस से मदद मांगी कि कृपया कर मेरी मदद कीजिए। तो अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो कैसे मांगते हैं? रिक्वेस्ट फॉर्म में मांगते हैं। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, प्लीज़ हेल्प मी जो है वो जब इनडायरेक्ट सेंटेंस क्रिएट हुआ तो रिक्वेस्टेड में बदल गया है। यहाँ पे हम प्लीज़ हेल्प मी नहीं लिखकर रिक्वेस्टेड वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और बाकी तो जनरल रूल्स इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव्ड हो गए हैं और मी के जगह पे हर हो गया है। होप इट इज़ क्लियर नाउ। इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट मेक नॉइज़ इन द क्लास। टीचर ने स्टूडेंट को क्लास में आवाज़ करने से मना किया। यहाँ पे हम ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट सेंटेंस है, जब वो इनडायरेक्ट में जाएगा तो क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। द टीचर forbidden the students not to make noise in the class।
यहाँ पे जैसे कि देख रहे कि डू नॉट मेक नॉइस की जगह पे फॉरबिडेड का इस्तेमाल हुआ है। टीचर ने स्टूडेंट्स को मना किया कि क्लास में आवाज़ ना करे। तो हम देख रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में शिफ्ट होते हैं। फाइनली वी मूव टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अ क्वेश्चन चेंजेस इनटू अ स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम जाते हैं, एक मेजर चेंज जो होता है वो होता है क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट में बदल जाता है। यस नो वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आस्क, इंक्वायर, इफ़, वेदर ऐसे वर्ड्स से रिप्लेस हो जाते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सी सेड आर यू राइटिंग अ पोएम। उसने कहा कि क्या तुम एक कविता लिख रही हो। उसने पूछा, इट इज़ अ क्वेश्चन। द सेम थिंग इफ़ आई एम सेइंग दैट देन आई विल से डैट शी आस्क्ड मी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक कविता लिख रही हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर यू जो वर्ड है वो वेदर से रिप्लेस हो गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यस नो क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं वो इफ़ वेदर वर्ड्स से रिप्लेस हो जाते हैं। आगे इसके कुछ और रूल्स देखते हैं। अगर क्वेश्चनिंग वर्ड्स हो जैसे हु, हाउ, वेयर एक्सेट्रा, तो ये जो वर्ड्स यूज़ होता है ये सेम रह जाता है रिपोर्टेड स्पीच में। इनमें कोई भी चेंज देखने को हमें नहीं मिलता है। हु, हाउ, वेयर एक्सेट्रा आर कांस्टेंट, दे डोंट चेंज व्हेन वी कम टू रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको थोड़ा एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड मी। तुम कहाँ रहते हो, ये क्वेश्चन है, उसने मुझसे पूछा, मैं कह रही हूँ उसने मुझसे पूछा तुम कहाँ रहते हो। अगर इसको हम इनडायरेक्ट में कह रहे हैं तो सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। उसने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रहती हूँ। यहाँ पे वेयर वर्ड पे आप नोटिस कीजिए कि वेयर वर्ड जो है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदला है, और शी के जगह पे बस आई का इस्तेमाल हुआ है। एंड बाकी तो जो रूल्स है वो पता ही है, डैट इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव कर देना है, और शी के बाद आस्क्ड मी एज इट इज़ है, बस वेयर भी कांस्टेंट ही है। तो होप इट इज़ क्लियर टू ऑल नाउ। सो फाइनली नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। आई एम गिविंग यू सम 3 questions. You need to solve it and answer in the comment box below. Questions are: she said, are you singing a song? Ram said, what a wonderful day it is. He said, I want to meet you. Very easy questions. सॉल्व करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है मुझे। That's all for today. होप कि आपको नरेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें थी सब कवर करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ ईजी एंड सिंपल वे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन for further notification. I'll keep uploading such important videos for you all. Thank you. Thanks for watching.